Good morning, students. Today I am going to explain some questions, some remaining question based on the chapter x square and square roots of the exercise third B. So let's start. The question number 14 of the exercise third B. The question says 3,600 soldiers are asked to stand in a different rows. Every row has as many soldiers as there are rows. Find the number of rows. According to the question number 14, 3,600 soldiers are asked to stand in different rows. 3,600 स्टूडेंट्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनको डिफरेंट रो में अरेंज करना है और एवरी रो हैज मैनी सोल्जर्स एज देयर आर रोज. जितनी हमारी रोज हैं उतने ही हमारे सोल्जर्स भी होने चाहिए. देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज. तो हमको नंबर ऑफ रोज बतानी है कि हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितनी बनानी पड़ेंगी और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही हमारे सोल्जर्स भी होने चाहिए हर रो में. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं दैट द टोटल नंबर ऑफ रोज, लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स. हम सपोज कर लेते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हमारी एक्स है. ठीक. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रो नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स बोथ आर इक्वल. According to question, number of soldiers is equals to number of rows. Number of soldiers is equals to number of rows. जितने हमारे soldiers होंगे उतने हमारी number of rows बनेंगी. ठीक. And the question is the total soldiers are 3,600. Given that the total soldiers equals to 3,600. Now according to question जितने हमारे सोल्जर्स हैं उतने हमारी रोज हैं और हमने नंबर ऑफ रोज को माना है एक्स. तो ये भी हमारे किसके इक्वल होगा? एक्स के. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारे दोनों सेम है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ सोल्जर्स is equals to 3,600 is equals to 3,600. Now solve this. तो by solving x into x is equals to 3,600. इसको सॉल्व कर लीजिए. तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आगे. According to question x into x equals to 3,600. Now x into x is x square is equals to 3,600. Now x equals to स्क्वायर ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 3,600. नाउ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3,600 इज 2 into 3 into 3 into 10 into 10. नाउ ऑन पेयरिंग सेम पेयर यहाँ बन गया. सब में से एक नंबर हम बाहर ले लेंगे 2, इसमें से 3 आउट एंड इसमें से 10 आउट. नाउ मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स 3 2 जा 6 6 10 जा 60. नाउ द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 60 एंड वेयर वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let's assume x is equals to number of rows. X is equals to number of rows. Hence the number of rows equals to x equals to 60. That is also equal to number of soldiers. तो इसके अकॉर्डिंग हमने टोटल जो हमारी नंबर ऑफ रोज बनेंगी वो 60 होंगी और हर एक लाइन में हमारे कितने सोल्जर्स होंगे? 60 सोल्जर्स होंगे. Is that clear? This is the answer. Come on to the next question, that is question number 15. And the question number 15 says
Find the perimeter of a square whose area is 6889 meter square. This is the figure of a square named as A, B, C and D. Let the side of a square, let the side of square is equals to x meter, and the area is given. Now given that area of square is equals to 6889 meter square. Now since we know that the area of square is equals to side square, the formula of, agar this is the length of square, then we know that all sides of a square is equal. Now it is also equal x, it is also equal to x, and it is also equals to x. Then now the area of the square is side square. Area of square is side square, and the side is equals to x. Then x square equals to 6889. Now the x equals to square root of 6889. Now we find the square root of the given number 6889. Now it becomes on solving 6889 by long division method, 6889 लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आप देखें यहाँ पेयर बनाएंगे, तो ये हमारे दो पेयर बन गए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 68 के नियर अबाउट हमारा कौन सा नंबर क्या आएगा? 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64। नाउ 8 में 4 ये हमारा 4, 8 9 यहाँ आ जाएगा, 8 में 8 ऐड कर देंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। नाउ 16 3 जा 48। नाउ 3 टाइम्स लेके देखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, 3 1 जा 3 1 4, 4 8 9। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 6889 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 83 मीटर। x क्या आ गया हमारा? x इज द साइड ऑफ अ गिवन स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। Now the side is equals to 83 meter and the perimeter of square is equals to 4 into side. Since we know that the formula of the perimeter of square is equals to 4 into side, now it becomes 4 into side is 83. Now the perimeter is equals to 4 3 is 12, 33, 332 meter. This is the perimeter of square. Perimeter of square. This is the solution of the question. Come on to the next question. Question number 16. Come on to the question number 16. That is, a society collected 8,836, each member contributing as many rupees as there was member. Find the number of members of the society. A society collected 8,836 rupees, each member contributing as many rupees as per member. Let the number of rupees, let the member is equals to x, और नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे x है, और वही हमारे क्या है जो कलेक्शन होगा वो किसके इक्वल है? हमारा कलेक्टेड मनी के इक्वल है। ठीक, जितने हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स है उतना ही हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ मनी कर रहे हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट
total collection is equals to 8,836 rupees. 8,836 rupees. Now according to question, x into x is equals to 8836. Now since the total number of members is equals to total number of money collected, जितने हमारे मेंबर्स हैं उतने ही हमारा पर मेंबर कलेक्शन का मनी है, तो दोनों इक्वल है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. x into x is equals to 8,836. Now it becomes x square equals to 8836. Now x is equals to square root of 8836. On finding the square root of 8836, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं. तो 8836 पेयर बना लेते हैं. इसका स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालते हैं. तो यहाँ पे 88 है हमारा, तो 9 9 जो होता है हमारा 81. 8 में से बन गया 7. 36 यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेयर नीचे ले लेते हैं. एंड यहाँ पे 9 प्लस कर लेते हैं. 9 कितना हो जाएगा 18. अगेन अब यहाँ देखिए 18 4 जा 72. 4 ले लेते हैं यहाँ पे. तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1. 4 8 जा 32 1 33. 4 1 जा 4 3 7. पूरा कैंसिल हो गया. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 94. So this is the number of member in a society. This is the equals to number of member of society. Number of member. Is that clear? So this is the solution of the given question. Come on to the next question. हॉट्स देखते हैं सीधे. हॉट्स का क्वेश्चन है. इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम हॉट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हॉट्स में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में. हॉट्स में कह रहा है हमारा फाइंड क्वेश्चन नंबर 23 है. क्वेश्चन नंबर 23 हॉट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस अगेन फिर अंदर स्क्वायर रूट है 25 प्लस फिर अंदर स्क्वायर रूट है 108 प्लस अंदर फिर अगेन स्क्वायर रूट है 154 प्लस अंदर फिर स्क्वायर रूट है 225. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस पर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. एक साथ हमारे बहुत सारे स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट गिवन है. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट से इसको सॉल्व करते हैं. और आपको स्क्वायर रूट अंदर याद भी होंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए सबसे पहले हम अंदर वाले को सबसे अंदर वाले को स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्या आएगा. ये इसको ऐसे रहने दीजिए 108, इसको भी ऐसे रहने दीजिए प्लस 154, इसको भी ऐसे रहने दीजिए प्लस. अब देखिए 225. तो यू नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 225. नाउ एड 154 प्लस 159. नाउ इट बिकम्स 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169. Since we know that the square root of 169 is 13, now it becomes 10 plus square root of 25 plus square root of 108 plus 13. Square root of 169 is 13. Now it becomes 108 plus 13. Now adding इसको ऐड कर लेते हैं. देखिए ऐड करने के बाद क्या आएगा 108 प्लस 13 को हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा. तो 108 प्लस 13 तो 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 121. तो स्क्वायर रूट ऑफ 121. 10 ऐसे रहेगा 25 ऐसे रहेगा, दोनों को ऐड किया 121. Since we know that the square root of 121 is 11.
121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11. नाउ इट बिकम्स square root of 10 plus square root of 25 plus 11. Now the 25 plus 11 is equals to, अब देखिए 25 plus 11 आया, तो 25 plus 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा. Is that clear? Now the square root of 36 is 6. Now adding 10 plus 6, it becomes square root of 16. 10 plus 6 is 16, and we know that the square root of 16 is equals to 4, and this is the solution of the given question. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. अगर इस टाइप से एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कई सारे स्क्वायर रूट होते हैं तो सबसे पहले हम अंदर वाले स्क्वायर रूट से स्टार्ट करते हुए और बाहर को ओपन करते हुए निकल जाते हैं. तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज 3 भी आज कंप्लीट होती है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3 सी को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.